یہ واحد کفیل ہے۔ وہ روزانہ 2 نوکریاں کرتی ہے لیکن کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ ایک دن راستے میں مہرا کا بیگ چن جاتا ہے۔ روشن اسے واپس دلوانے میں مدد کرتا ہے اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں میں ایک خاموش سا اعتماد بن جاتا ہے۔ مہرا روشن کو پسند کرنے لگتی ہے مگر وہ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتا ہے۔ ایک دن مہرو پوچھتی ہے، آپ مجھ سے اتنی دور کیوں رہتے ہیں؟ روشن فوراً جواب نہیں دیتا۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ روشن کے پاس ایک نیا کیس آتا ہے، ایک شخص کے بارے میں جس پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی کاروبار میں شامل ہے۔ فوٹیج دیکھ کر وہ روشن کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مجرم اس کا اپنا بڑا بھائی سلمان ہوتا ہے۔ روشن ٹوٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ سچ کے لیے لڑے یا اپنے بھائی کو بچائے۔ مہرو کے گھر میں دوسری مصیبت۔ اس کا کزن عدنان زبردستی شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ عدنان اسے کہتا ہے، تم جیسی لڑکیاں خاندان کے سہارے کے بغیر زیادہ دیر نہیں چل سکتی، میرے ساتھ نکاح کر لو۔ مہرو انکار کرتی ہے لیکن عدنان اس کے بھائی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے۔ عدنان سلمان کو استعمال کر رہا ہے تاکہ دونوں خاندانوں پر قابو رکھ سکے۔ یہ سب سن کر روشن حیران رہ جاتا ہے۔ روشن اپنے بھائی سلمان کو سچ بتاتا ہے۔ سلمان شرمندہ ہو کر کہتا ہے، اگر میں نے تیرا راستہ روکا تو میرا خون بھی بیکار ہو جائے گا، سچ کے لیے مجھے چھوڑ لے، میں خود عدنان کے خلاف گواہی دوں گا۔ روشن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ عدنان کے سارے کام بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ سلمان خود پولیس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے اور روشن کی سچائی کے بعض معاملے صاف ہو جاتے ہیں۔ مہرو روشن کو دیکھ کر کہتی ہے، آپ نے اپنے رشتے کی قربانی دی صرف سچ کے لیے۔ روشن آہستہ سے جواب دیتا ہے، اندھیری سچائی کو جتنا چھپاؤ وہ اتنے ہی تیزی سے باہر آتی ہے۔ میں چاہتا تھا میرے آج کسی کا کل خراب نہ کرے۔ مہرو آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دیتی ہے، اگر آپ سچ کے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آخری سین میں دونوں ہاتھ تھم کر چل رہے ہوتے ہیں۔ راستہ روشن اور پیچھے اندھی سچائی ختم ہو چکی تھی۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک شہر سے دور پہاڑی علاقے کے چھوٹے قصبے سے شروع ہوتی ہے۔ روشن وہاں ایک نجی ادارے میں کام کرتا ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس کی شہرت ہے کہ وہ جھوٹ کے اندر چھپا سچ پکڑ لیتا ہے۔ دوسری طرف مہرو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کے واحد کفیل ہے۔ وہ روزانہ 2 نوکریاں کرتی ہے لیکن کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ ایک دن راستے میں مہرا کا بیگ چن جاتا ہے۔ روشن اسے واپس دلوانے میں مدد کرتا ہے اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں میں ایک خاموش سا اعتماد بن جاتا ہے۔ مہرا روشن کو پسند کرنے لگتی ہے مگر وہ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتا ہے۔ ایک دن مہرو پوچھتی ہے، آپ مجھ سے اتنی دور کیوں رہتے ہیں؟ روشن فوراً جواب نہیں دیتا۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ روشن کے پاس ایک نیا کیس آتا ہے، ایک شخص کے بارے میں جس پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی کاروبار میں شامل ہے۔ فوٹیج دیکھ کر وہ روشن کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مجرم اس کا اپنا بڑا بھائی سلمان ہوتا ہے۔ روشن ٹوٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ سچ کے لیے لڑے یا اپنے بھائی کو بچائے۔ مہرو کے گھر میں دوسری مصیبت۔ اس کا کزن عدنان زبردستی شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ عدنان اسے کہتا ہے، تم جیسی لڑکیاں خاندان کے سہارے کے بغیر زیادہ دیر نہیں چل سکتی، میرے ساتھ نکاح کر لو۔ مہرو انکار کرتی ہے لیکن عدنان اس کے بھائی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے۔ عدنان سلمان کو استعمال کر رہا ہے تاکہ دونوں خاندانوں پر قابو رکھ سکے۔ یہ سب سن کر روشن حیران رہ جاتا ہے۔ روشن اپنے بھائی سلمان کو سچ بتاتا ہے۔ سلمان شرمندہ ہو کر کہتا ہے، اگر میں نے تیرا راستہ روکا تو میرا خون بھی بیکار ہو جائے گا، سچ کے لیے مجھے چھوڑ لے، میں خود عدنان کے خلاف گواہی دوں گا۔ روشن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ عدنان کے سارے کام بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ سلمان خود پولیس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے اور روشن کی سچائی کے بعض معاملے صاف ہو جاتے ہیں۔ مہرو روشن کو دیکھ کر کہتی ہے، آپ نے اپنے رشتے کی قربانی دی صرف سچ کے لیے۔ روشن آہستہ سے جواب دیتا ہے، اندھیری سچائی کو جتنا چھپاؤ وہ اتنے ہی تیزی سے باہر آتی ہے۔ میں چاہتا تھا میرے آج کسی کا کل خراب نہ کرے۔ مہرو آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دیتی ہے، اگر آپ سچ کے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آخری سین میں دونوں ہاتھ تھم کر چل رہے ہوتے ہیں۔ راستہ روشن اور پیچھے اندھی سچائی ختم ہو چکی تھی۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेहरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कपील है। वो रोज़ाना दो नौकरियाँ करती है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन मेहरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए। मेहरों के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। मेहरो इनकार करती है लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। व्यूअर्स, अफनान सलमान को इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूँगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं। अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। मेहरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन इस तरह से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतने ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है, अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेहरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कपील है। वो रोज़ाना दो नौकरियाँ करती है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन मेहरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए। मेहरों के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। मेहरो इनकार करती है लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। व्यूअर्स, अफनान सलमान को इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूँगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं। अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। मेहरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन इस तरह से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतने ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है, अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ।
آخری سین میں دونوں ہاتھ تھم کر چل رہے ہوتے ہیں، راستہ روشن اور پیچھے اندھی سچائی ختم ہو چکی تھی۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک شہر سے دور پہاڑی علاقے کے چھوٹے قصبے سے شروع ہوتی ہے۔ روشن وہاں ایک نجی ادارے میں کام کرتا ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس کی شہرت ہے کہ وہ جھوٹ کے اندر چھپا سچ پکڑ لیتا ہے۔ دوسری طرف مہرو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کے واحد کفیل ہے۔ وہ روزانہ 2 نوکریاں کرتی ہے لیکن کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ ایک دن راستے میں مہرا کا بیگ چھن جاتا ہے۔ روشن اسے واپس دلوانے میں مدد کرتا ہے اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں میں ایک خاموش سا اعتماد بن جاتا ہے۔ مہرا روشن کو پسند کرنے لگتی ہے مگر وہ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتا ہے۔ ایک دن مہرو پوچھتی ہے، آپ مجھ سے اتنی دور کیوں رہتے ہیں؟ روشن فوراً جواب نہیں دیتا۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ روشن کے پاس ایک نیا کیس آتا ہے، ایک شخص کے بارے میں جس پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی کاروبار میں شامل ہے۔ فوٹیج دیکھ کر وہ روشن کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مجرم اس کا اپنا بڑا بھائی سلمان ہوتا ہے۔ روشن ٹوٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ سچ کے لیے لڑے یا اپنے بھائی کو بچائے۔ مہرو کے گھر میں دوسری مصیبت۔ اس کا کزن عدنان زبردستی شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ عدنان اسے کہتا ہے، تم جیسی لڑکیاں خاندان کے سہارے کے بغیر زیادہ دیر نہیں چل سکتی، میرے ساتھ نکاح کر لو۔ مہرو انکار کرتی ہے لیکن عدنان اس کے بھائی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے۔ ویورز، عدنان سلمان کو استعمال کر رہا ہے تاکہ دونوں خاندانوں پر قابو رکھ سکے۔ یہ سب سن کر روشن حیران رہ جاتا ہے۔ روشن اپنے بھائی سلمان کو سچ بتاتا ہے۔ سلمان شرمندہ ہو کر کہتا ہے، اگر میں نے تیرا راستہ روکا تو میرا خون بھی بیکار ہو جائے گا۔ سچ کے لیے مجھے چھوڑ لے، میں خود عدنان کے خلاف گواہی دوں گا۔ روشن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ عدنان کے سارے کام بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ سلمان خود پولیس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے اور روشن کی سچائی کے بعض معاملے صاف ہو جاتے ہیں۔ مہرو روشن کو دیکھ کر کہتی ہے، آپ نے اپنے رشتے کی قربانی دی صرف سچ کے لیے۔ روشن آہستہ سے جواب دیتا ہے، اندھیری سچائی کو جتنا چھپا وہ اتنے ہی تیزی سے باہر آتی ہے۔ میں چاہتا تھا میرے آج کسی کا کل خراب نہ کرے۔ مہرو آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دیتی ہے، اگر آپ سچ کے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آخری سین میں دونوں ہاتھ تھم کر چل رہے ہوتے ہیں، راستہ روشن اور پیچھے اندھی سچائی ختم ہو چکی تھی۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک شہر سے دور پہاڑی علاقے کے چھوٹے قصبے سے شروع ہوتی ہے۔ روشن وہاں ایک نجی ادارے میں کام کرتا ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس کی شہرت ہے کہ وہ جھوٹ کے اندر چھپا سچ پکڑ لیتا ہے۔ دوسری طرف مہرو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کے واحد کفیل ہے۔ وہ روزانہ 2 نوکریاں کرتی ہے لیکن کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ ایک دن راستے میں مہرا کا بیگ چھن جاتا ہے۔ روشن اسے واپس دلوانے میں مدد کرتا ہے اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں میں ایک خاموش سا اعتماد بن جاتا ہے۔ مہرا روشن کو پسند کرنے لگتی ہے مگر وہ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتا ہے۔ ایک دن مہرو پوچھتی ہے، آپ مجھ سے اتنی دور کیوں رہتے ہیں؟ روشن فوراً جواب نہیں دیتا۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ روشن کے پاس ایک نیا کیس آتا ہے، ایک شخص کے بارے میں جس پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی کاروبار میں شامل ہے۔ فوٹیج دیکھ کر وہ روشن کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مجرم اس کا اپنا بڑا بھائی سلمان ہوتا ہے۔ روشن ٹوٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ سچ کے لیے لڑے یا اپنے بھائی کو بچائے۔ مہرو کے گھر میں دوسری مصیبت۔ اس کا کزن عدنان زبردستی شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ عدنان اسے کہتا ہے، تم جیسی لڑکیاں خاندان کے سہارے کے بغیر زیادہ دیر نہیں چل سکتی، میرے ساتھ نکاح کر لو۔ مہرو انکار کرتی ہے لیکن عدنان اس کے بھائی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے۔ ویورز، عدنان سلمان کو استعمال کر رہا ہے تاکہ دونوں خاندانوں پر قابو رکھ سکے۔ یہ سب سن کر روشن حیران رہ جاتا ہے۔ روشن اپنے بھائی سلمان کو سچ بتاتا ہے۔ سلمان شرمندہ ہو کر کہتا ہے، اگر میں نے تیرا راستہ روکا تو میرا خون بھی بیکار ہو جائے گا۔ سچ کے لیے مجھے چھوڑ لے، میں خود عدنان کے خلاف گواہی دوں گا۔ روشن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ عدنان کے سارے کام بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ سلمان خود پولیس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے اور روشن کی سچائی کے بعض معاملے صاف ہو جاتے ہیں۔ مہرو روشن کو دیکھ کر کہتی ہے، آپ نے اپنے رشتے کی قربانی دی صرف سچ کے لیے۔
रोशन आहिस्ता से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतने ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है। अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ महरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कपील है। वो रोज़ाना 2 नौकरियाँ करती है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन महरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए। महरो के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। महरो इनकार करती है लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। व्यूअर्स, अफनान सलमान की इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूँगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं। अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। महरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन आहिस्ता से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतने ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है। अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ महरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कपील है। वो रोज़ाना 2 नौकरियाँ करती है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन महरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए। महरो के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। महरो इनकार करती है लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। व्यूअर्स, अफनान सलमान की इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूँगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं।
अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। मेहरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन आहिस्ता से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतनी ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है, अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेहरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कफील है। वो रोज़ाना 2 नौकरियाँ करती है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन मेहरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए। मेहरों के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। मेहरो इनकार करती है लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। व्यूअर्स, अफनान सलमान को इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूँगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं। अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। मेहरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन आहिस्ता से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतनी ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है, अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेहरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कफील है। वो रोज़ाना 2 नौकरियाँ करती है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन मेहरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए। मेहरों के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। मेहरो इनकार करती है लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है।
व्यूअर्स अफनान सलमान को इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूँगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं। अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। मेहरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन आहिस्ता से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतने ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है, अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेहरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कपील है। वो रोज़ाना 2 नौकरियाँ करती है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन मेहरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए। मेहरो के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। मेहरो इनकार करती है लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। व्यूअर्स अफनान सलमान को इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूँगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं। अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। मेहरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन आहिस्ता से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतने ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है, अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेहरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कपील है। वो रोज़ाना 2 नौकरियाँ करती है लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन मेहरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए।
मेहरों के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। मेहर इनकार करती है, लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। व्यूअर्स, अफनान सलमान को इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूंगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं। अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। मेहरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन इस तरह से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतनी ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है, अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेहरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कपील है। वो रोज़ाना 2 नौकरियाँ करती है, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद करता है और पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू होती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक खामोश सा एतमाद बन जाता है। मोहरा रोशन को पसंद करने लगती है, मगर वो हमेशा एक फासला रखता है। एक दिन मेहरो पूछती है, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? रोशन फ़ौरन जवाब नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि वो कुछ छुपा रहा है। रोशन के पास एक नया केस आता है, एक शख्स के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी कारोबार में शामिल है। फुटेज देखकर वो रोशन का दिल बैठ जाता है। वो मुजरिम इसका अपना बड़ा भाई सलमान होता है। रोशन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि सच के लिए लड़े या अपने भाई को बचाए। मेहरों के घर में दूसरी मुसीबत। इसका कज़न अफनान ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अफनान उसे कहता है, तुम जैसी लड़कियां ख़ानदान के सहारे के बगैर ज़्यादा देर नहीं चल सकती, मेरे साथ निकाह कर लो। मेहर इनकार करती है, लेकिन अफनान इसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। व्यूअर्स, अफनान सलमान को इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ख़ानदानों पर काबू रख सके। ये सब सुनकर रोशन हैरान रह जाता है। रोशन अपने भाई सलमान को सच बताता है। सलमान शर्मिंदा होकर कहता है, अगर मैंने तेरा रास्ता रोका तो मेरा खून भी बेकार हो जाएगा। सच के लिए मुझे छोड़ ले, मैं खुद अफनान के ख़िलाफ़ गवाही दूंगा। रोशन की आंखें नम हो जाती हैं। अफनान के सारे काम बेनकाब हो जाते हैं। सलमान खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है और रोशन की सच्चाई के बाद मामले साफ हो जाते हैं। मेहरो रोशन को देख कर कहती है, आपने अपने रिश्ते की कुर्बानी दी सिर्फ सच के लिए। रोशन इस तरह से जवाब देता है, अंधेरी सच्चाई को जितना छुपाओ वो इतनी ही तेज़ी से बाहर आती है। मैं चाहता था मेरे आज किसी का कल ख़राब ना करे। मेरे आंखों में नमी लिए मुस्कुरा देती है, अगर आप सच के हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सीन में दोनों हाथ थम कर चल रहे होते हैं। रास्ता रोशन और पीछे अंधी सच्चाई ख़त्म हो चुकी थी। ड्रामा मसले के हवाले से राय की लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक शहर से दूर पहाड़ी इलाके के छोटे कस्बे से शुरू होती है। रोशन वहाँ एक निजी इदारे में काम करता है जो गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करता है। इसकी शोहरत है कि वो झूठ के अंदर छुपा सच पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेहरो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के वाहद कपील है। वो रोज़ाना 2 नौकरियाँ करती है, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं झुकती। एक दिन रास्ते में मोहरा का बैग छिन जाता है। रोशन उसे वापस दिलवाने में मदद